So it's we started with a new chapter, that is dictionary, word formation and jumbling. We solved certain questions, right? कि किसी भी word like they were given certain words options में, and we had to set them according to their appearance in the dictionary के according, ठीक है? Then हमें third place simple वही question था almost. फिर हमें एक word given था और हमें बताना था कि इस word में से कौन सा word we can form and कौन सा word we can not form, odd one out type, ठीक है? Okay. Yes. Now this is a new type of question जहाँ पे the question says we have to form a word with the help of the options. मतलब यहाँ पे हमारे पास simple क्या है, jumbled letters given है और हमें इन jumbled letters से कोई senseful कोई actual word हमें form करना है. Okay, looking at the first word, जैसे यहाँ पे Y दिख रहा है, we can see E, we can see N. पहली चीज तो इस ये जो जम्बल लेटर्स है एंड फ्रॉम दिस वी हैव टू फॉर्म अ वर्ड, इसके लिए जो वोकैबुलरी होनी चाहिए आपकी, दैट शुड बी ऑफ अ गुड लेवल. मतलब एक बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट आनी चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत गेस लगा पाओ कि हाँ ठीक है ये वर्ड बन सकता है या तो कोई ये वर्ड बन सकता है. इट्स नॉट लाइक बहुत हाई फाई इंग्लिश चाहिए, बट बेसिक इंग्लिश, एक नॉर्मल अच्छी लेवल की इंग्लिश चाहिए हमें इसके लिए. तो लुकिंग एट दिस वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्ड है दिस इज इंसाइक्लोपीडिया. ये जो वर्ड है इंसाइक्लोपीडिया, देखो ई एन साइक्लो CYCLO पीडिया. वेट, ई एन इन हो गया, इन साइक्लो CYCLO CYCLO इंसाइक्लो हो गया. देन पीडिया PEDIA encyclopedia, ठीक है. Next, if we can see indicator. This word is indicator. देखो I है, N, we have I, we have N, we have D, then we have I in D, CATOR indicator, ठीक है. Then this word is equation, EQUATION equation. This word is your, we have double A, ठीक है, we have V, we have R, we have O, TN. Okay, so this word is variation. देखो V है हमारे पास, we have A, we have R, we have I, then again we have A, we have T, we have again I, we have this ION. Yes, so this word is variation. Okay, this word is, let's see, यहाँ पे हमारे पास डबल R है, ATNSGE. Okay, so this word may be stranger. Let's check. सारे letters form हो रहे हैं. S, we have S, TR, we have T, we have R, we have again A and N, we have A, we have N, then GER. Okay, so this word is stranger. Coming to the next word, this is very simple. This is prison. तो बहुत simple था. PRISON, prison, right? Okay. This word is establish. ये जो word है establish, CSTABLLISH, establish. Then this is also very simple, student, STUDENT, student. Again this is also very simple, pencil, ये pencil word है, ठीक है. Then ये तो सबसे simple है. This word is puzzle. ये तो as it is एक word given है reactive, but still अगर हमें given है so we have to form a different meaningful word. तो see, creative is the word. So this is a different type of question. ये as it is बिल्कुल ऐसे देख के तो आना चाहिए, but this will come with the time. और वो कैसे आएगा? With practice. So we have to practice for this, for such type of questions. तो इसके लिए थोड़ी vocabulary basic English होनी चाहिए. Okay. Which one of the given responses would be meaningful order of the following? Okay, so इस type
व्हाट वी हैव टू डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है, इन रैंडम ऑर्डर, और हमें इन्हें ऑर्डर वाइज हमें इन्हें सेट करना है। जैसे हाउस है, रोड है, रूम है, हेमलेट, हेमलेट मीन्स टाउन, डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले एक रूम आएगा, ठीक है, फर्स्ट वील हैव अ रूम। अब रूम कहाँ पर होता है, घर में होता है, सो इन हाउस, रूम कहाँ होता है, घर में होता है। हाउस कहाँ पर होता है, रोड पे होता है। सड़कें होती हैं, रोड होता है, रोड के साइड में घर होता है, तो कह सकते हैं रोड पे घर है हमारा, ठीक है, राइट। ओके, सो वी हैव रूम, रूम कहाँ पे होता है, हाउस में होता है, हाउस कहाँ पे होता है, रोड पे होता है। अब जो रोड है वो कहाँ पे होता है, टाउन में होता है, रोड टाउन में होता है, इन टाउन्स वी हैव रोड्स, राइट। और जो टाउन कहाँ होता है, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रिक्ट के अंडर होता है। सो रूम, हाउस, रोड, हेमलेट, डिस्ट्रिक्ट। इन द सेम वे वी हैव डॉक्टर, फीवर, मेडिसिन, मेडिकल, शॉप। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले डॉक्टर तो आएगा नहीं, पहले तो फीवर आएगा, फीवर आएगा, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें मेडिकल शॉप से या मेडिकल शॉप पे भेजेगा या वहां से व्हाटसोएवर, फिर हमें मेडिसिन मिलेगा, राइट। ओके, वी हैव पल्प, वी हैव प्रिंट, वी हैव पेपर, वी हैव परचेज, वी हैव पब्लिश। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले तो पल्प होता है, ठीक है, उस पल्प से क्या बनता है, पेपर बनता है। अब उस पेपर पे क्या होगा, प्रिंट होगा, प्रिंट होगा तो क्या होगा, मतलब प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे पब्लिश करेंगे, किसी पब्लिकेशन में डाल के हम अपनी बुक बनवाएंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट लोग उसे परचेज करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सीरीज है सीड, फ्रूट, प्लांट, फूड। तो सीड तो चलो पहले आएगा, सीड सबसे पहले हम लगाएंगे, ठीक है। अब उस सीड से क्या बनेगा, प्लांट बनेगा, उस प्लांट में क्या आएगा, हमारे पास फ्रूट आएगा, और वो फ्रूट किसका काम करेगा, फूड का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव वुड, वी हैव बुक, फैक्ट्री, पेपर, प्रिंट। तो सबसे पहले वुड है, ठीक है, वुड कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा पहले, उस फैक्ट्री से, उस फैक्ट्री में वुड का क्या बनाएंगे हम, उस फैक्ट्री में वुड का हम बनाएंगे पेपर, पेपर पे क्या होगा, पेपर पे प्रिंट होगा, और वो जो प्रिंट होगा ढेर सारे पेपर पे, फिर उससे क्या बनेगा, बुक बनेगा। नेक्स्ट इज विंडो, वॉल, फ्लोर, फाउंडेशन, रूफ, रूम। तो सबसे पहले किसी भी चीज की क्या होती है, फाउंडेशन होती है, जड़, नींव, ठीक है। देन उस पे दीवारें खड़ी होंगी, वॉल, विंडो बनेगा फिर उसके बाद, ठीक है, दीवार होगा तो दीवार पे तो विंडो होता है, तो पहले दीवार बनेगी, फिर उस पर विंडो का शेप डलेगा, वो जो भी होता है, ठीक है। तो फाउंडेशन, वॉल, विंडो, दिस इज डन, फाउंडेशन, वॉल, विंडो, डन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बनेगा, छत बनेगी, रूफ, फिर नीचे का फ्लोर बनेगा, एंड देन फाइनली हमारे पास रूम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पुलिस, पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा, क्राइम होगा तो पुलिस जाएगी, पुलिस जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। जस्टिस कैसे मिलेगा, पहले पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट, ओके नहीं, जस्टिस कैसे मिलेगा, पहले जजमेंट होगा, ठीक है, और जजमेंट के बाद क्या होगा, पनिशमेंट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव चाइल्डहुड, अडल्टहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस एंड बेबीहुड। सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंसी, जब बच्चा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल छोटा होता है, 2-3 वीक्स जो हम कहते हैं, सो इन्फेंसी वो हो गया। बेबीहुड, जब जो बच्चा ऐसे नहीं क्रॉल करता है टाइप, तो दैट इज बेबीहुड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जब बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में होते हैं, चाइल्डहुड। Then adolescence, that is from 13 to 19, right? Then we have adolescence. And then finally after adolescence, we have adulthood. Okay. We have yearly, we have fortnightly, monthly, daily, weekly. पहले क्या होगा, daily, हर दिन, ठीक है. Then weekly, हर 7 दिन. Weekly is 7 days, right? A week consists of 7 days. Fortnightly means हर 15 दिन. Fortnightly is 15 days, ठीक है. Then we have fortnightly. 15 दिन के बाद क्या आता है, एवरी 30-31 डेज, और फेब्रवरी में 28 डेज, देन वी हैव मंथली, ठीक है, एंड देन फाइनली वी हैव ईयरली। प्रेजेंटेशन, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कोई भी आएगा, पहले अराइवल होगा, वो अपना क्या देगा, इंट्रोडक्शन देगा, उस इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेगा, वो अपना प्रेजेंटेशन देगा,
प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो प्रेजेंटेशन हुआ है उस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, राइट। और डिस्कशन के बाद हमारे पास क्या होगा, रिकमेंडेशन, सजेशन, जो भी होता है, ठीक है। ओके, हेक्सागन, ट्राइंगल, पेंटागन, स्क्वायर, ऑक्टागन, those who come from maths background और मे बी जिन्होंने बेसिक मैथ्स भी पढ़ी है 10th तक, उन्हें ये पता होगा। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स। इन स्क्वायर वी हैव 4 साइड्स। पेंटागन, पेंटा मीन्स 5, पेंट 5, ठीक है। देन हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा HEPTA दिस इज 7, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। एंड देन ऑक्टा मीन्स 8, उसके बाद हमारे पास आता है नैनो 9, नोना, नैना, नैनो 9, एंड देन फाइनली वी हैव डेका विच मीन्स 10, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ट्राइंगल आएगा। नेक्स्ट वी हैव स्क्वायर, नेक्स्ट वी हैव 3, 4, 5, देन वी हैव पेंटागन, नेक्स्ट वी हैव हेक्सागन, और क्योंकि ऑप्शन में वी डोंट हैव हेप्टागन तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्टागन, राइट। ओके, सो this is it for the chapter dictionary, word formation and jumbling, right। तो ये था हमारा जम्बलिंग के कैटेगरी में ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। and this is also jumbling, word formation, these are the part of dictionary। okay, so this is it for this chapter, क्योंकि chapter बहुत ही छोटा chapter है, dictionary, word formation and jumbling। and if you have any doubt, so please mention it in the comments below. I'll definitely get back to you. Thank you.